In the next question, it is a AC power supply of 220 volt, 50 hertz, resistance given, capacitance given, reactance given, and it is connected in series. So it is L, C, and R are connected in the series. Then what is the resistance? Resistance is a 20, and capacitance reactance is a 25, and inductor reactance is a 45. Then current in this circuit, what is the impedance? It is equal to under root of, that is 20 square plus XL minus XC, that is a 20, and total Z is a 20 root 2, or it is a almost 28. Then current is equal to 220 divide by 28, calculate करने पर it is almost 7.8 ampere. इन द सेकेंड फेज की बात करें तो फेज के लिए tan phi इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड बाय R, and it is a 20 by 20, that means the phase angle is equal to. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पाइप ओपन पाइप है, एट द बोथ एंड ओपन है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है. इट मीन्स यदि ओपन पाइप की बात करें हम, तो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ. इसी पाइप को अब यदि वाटर में डिप किया है, सपोज वाटर में डिप करने पर इसका इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगा, और सेकंड थिंग ओपन जो है वो क्लोज हो जाएगा. इसे कितना डिप किया है? इट इज़ हाफ ऑफ इट्स लेंथ. इट मीन्स इफेक्टिव लेंथ इज ओनली L/2, and the fundamental frequency in this new situation is a V by 4 into effective length. Effective length of the closed pipe is a L/2. So again it is a V by 12, remains same. So frequency अभी भी initial frequency के equal है, so correct option is the fourth one. De Broglie wavelength of an electron orbiting in the second state of hydrogen atom, then given radius of Bohr radius is a R is equal to 0.052 nanometer. Then we know it is a 2 pi r. Radius is equal to 2 pi r equal to n lambda. That is a radius of the nth orbit. Then it is equal to n lambda. Then we know n equal to, that is a 2. So pi r 2 is equal to lambda. Then lambda equal to pi n square r1, and this is a 3.14 n square. N square is a 4, radius is given, it is 0.052. I think if calculate करेंगे तो it is almost 0.6 nanometer. Accordingly, fourth one is correct. नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें 10 वर्नियर स्केल 9 मैन स्केल डिवीज़न के इक्वल है. इट मीन्स 9/10, 1 माइनस 9/10 यानी 0.1 mm, या यूँ कहते हैं 0.01 सेंटीमीटर. ये हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा, बिकॉज ये वो वैल्यू है जो कि यहाँ पर एडजस्ट होकर लीस्ट काउंट के इक्वल हो जाएगा. अब सपोज ये माने कि इसकी मैन स्केल का रीडिंग 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर रीडिंग होने का वाला एक्चुअल रीडिंग 5.0 है. नाउ 8वां वर्नियर डिवीज़न जो है कॉन्साइड हो रहा है. 8वां डिवीज़न कॉन्साइड होने का मतलब मैन स्केल 5.0 दे रहा है, जबकि वर्नियर स्केल जो रीडिंग दे रहा है दैट इज़ 0.08. ये मैन स्केल का रीडिंग डायरेक्टली, और ये वर्नियर का जो डिवीज़न कॉन्साइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है. सो 8 मल्टीप्लाई बाई 0.01, सो एक्चुअल रीडिंग जो है इट इज़ 5.08 सेंटीमीटर हो जाएगा.
बट इसमें एक कंडीशन दिया है, इसमें कुछ एरर दिया है। एरर क्या दिया है कि जब कुछ नहीं होता है तब ये x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर का इसमें रीडिंग देता है, यानी ये रीडिंग जो है एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा दे रहा है। ज़्यादा दे रहा है इट मीन्स करेक्शन करने के बाद यदि एक्चुअल रीडिंग देखें हम, सो 5.08 में से ये रीडिंग जो दे रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। सो इट इज़ 8, 9 और 4.98 सेंटीमीटर इज़ द एक्चुअल रीडिंग. In the next one, radius of the Martian orbit around the Sun is 4 times the radius of the orbit of Mercury. It means radius of Mercury, suppose the radius of Mercury r है तो इसका 4 times is the radius of Martian orbit. And the second Martian year means time period, Martian year का time period 687 days. Then find क्या करना था, then which of the following the length means the time period find करना है 1 year of Mercury, यानी इसका time period, Mercury का time period find out करना है. So Mercury का time period find करना है. It means time period is proportional to orbital radius to the power 3/2. It means time period of suppose Mercury निकालना है is proportional to radius of Mercury to the power 3/2, and it is divided by, suppose it is divided by the, डिवाइड कर दूँ तो इट इक्वल हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ Martian orbit. Martian orbit time period is given, it is 687, then the radius of the Martian orbit is 4 times of the Mercury to the power 3/2. So time period of the Mercury is equal to 687 days divided by 4 to the power 3/2. It means 4 root 4. It is 8. So it is divided by 8. 687 divided by 8. It is 86 days के करीब. It is always 88 Earth days. So third one is correct. The question from polarization of the light. इसमें ये बोला है कि लाइट बीम एयर से किसी मीडियम पर इंसिडेंट हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है. सो ऑब्वियसली ये इस जगह जब इंसिडेंट होगी इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा. रिफ्लेक्टेड लाइट परफेक्टली पोलराइज्ड होती है, जबकि रिफ्रैक्टिंग लाइट जो है, या यूँ कहते हैं ट्रांसमिटिंग जो लाइट है, ये पार्शली पोलराइज्ड होती है. एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 इनवर्स म्यू. तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग. ट्रांसमिटेड लाइट इज़ कम्प्लीट, नो. रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ कम्प्लीटली पोलराइज्ड, बिल्कुल सही है. और ये √3 के करीब वैल्यू है, तो इट इज़ 10 इनवर्स 1.732 मीन्स इट इज़ थीटा 60. सो थर्ड वन इज़ करेक्ट. क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन. एक बॉडी का वेट 48 न्यूटन, 48 जो न्यूटन वेट है, दैट वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ द बॉडी to earth height equal to the 1/3 of the radius of the earth from its surface. It means the new value of the g at the height h, it is gm upon height is 1/3 of the radius, h equal to r by 3. So इसे सॉल्व करेंगे तो gm upon 4/3 4r by 3 का स्क्वायर, एंड g का इफेक्टिव वैल्यू जो आएगा इट इज़ 9/16 times of the g. So we can say that the new weight on the height h is equal to initial का 9/16 times, because g का वैल्यू 9/16 हुआ है, so it is 27 न्यूटन. या यूँ कह सकते हैं मास सेम रहेगा बट द वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द जी. सो द 27 मीन्स. क्वेश्चन लॉजिक गेट से. लॉजिक गेट में यदि मैं इस इनपुट ए बी को बुलियन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो वेरी फर्स्ट इट इज़
A and B in the OR gate A plus B, but with NOT gate, so it is bar. Then in the AND gate it is a and B, again not, both are in the AND means multiply. इसको सॉल्व करें तो इट इज़ अ A डॉट B, इंडिविजुअल बार आ जाएगा. एंड इसे सॉल्व करें तो इट इज़ अ A एंड प्लस ऑफ B, इन पे इंडिविजुअल बार आ जाएगा. इसे सॉल्व करें तो इट इज़ अ मल्टीप्लाई कर लें A B एंड A प्लस A B एंड B, सभी पे बार है. सो फर्स्ट टर्म बिकम्स A dot B plus second is also A dot B. So ultimately it is a A dot B, और इसे सिंप्लीफाई करो तो इट इज़ A plus B. इट मीन्स इट इज़ अ A plus B means OR gate, but the whole of not, so OR gate, and that is a plus not, that is a NOR gate. So the second one is correct. या फिर ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये NOR गेट होगा. सो सेकेंड वन इज़ करेक्ट. अच्छा 45 का हम सरफेस टेंशन की तरफ अप्रोच करें तो दो प्लेट्स के बीच में यदि लिक्विड रखते हैं हम, तो इस लिक्विड का सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंड्रिकल में आपको ध्यान होता है एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू T बाय R. सपोज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, देन वी कैन से D इक्वल टू 2R. टोटल थिकनेस इज D इक्वल टू 2R, सो R इक्वल टू D बाई 2. तो ये एक्सेस प्रेशर को हम 2T बाय D भी लिखते हैं, बट एक्चुअली एक्सेस प्रेशर क्या होता है? द एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू T बाय R. R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. In this situation we know the radius of curvature is equal to 1 plus dy by dx का whole square upon d2y by dx2. Again we can say dy by dx or a tan theta is very small, so radius of curvature is inversely proportional to d2y by dx2. so radius of curvature की जगह मैं ये लिख दूँ एक्सेस प्रेशर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो सरफेस टेंशन एस गिवन है, एस अपॉन आर मीन्स इट इज़ d2y बाय dx2. और यही रीज़न है कि इस एक्सेस प्रेशर के कारण ये सरफेस पर हाइट रेज कर रहा है, और हाइट रेज यदि y डिस्टेंस तक जाता है इसमें, तो ये दिस एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इक्वल टू y रो जी लिख सकते हैं हम. सो y रो जी इज़ द vertical height, so y rho g equal to s d2y by dx2. Then we can say d2y by dx2 is equal to y या rho g by s into y. Then this one is a fourth is a correct. नेक्स्ट प्रॉब्लम रे ऑप्टिक्स है. इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस है. तो लेंस के कॉम्बिनेशन में जो फोकल लेंथ होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, या यूँ कह दूँ कि पावर जो है दैट पावर इक्वल टू सभी पावर्स ऐड होगी. ऐसे कितने लेंस है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ लेंसेज आर आई थिंक 4. इसका इफेक्टिव जो पावर आएगी दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल, सभी की पावर सेम है. सो फाइनल कॉम्बिनेशन के पावर 4 टाइम्स ऑफ पी. सिमिलर यदि मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन रिजल्टेंट जो होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय m3 एंड सो ऑन, बट यहाँ पर सभी की मैग्नीफिकेशन m है. सो इट इज़ m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m. सो इस कॉम्बिनेशन की मैग्नीफिकेशन m टू द पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 टाइम्स हो जाएगी. सो आई थिंक इट इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज यदि किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और उस पर फोर्स 0 लगे, नेट फोर्स 0 लगे, इट मीन्स कंडीशन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बी, बिकॉज द नेट फोर्स इज अ क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्यू ई. ऐसी सिचुएशन में ई और बी परपेंडिकुलर होना चाहिए.
और वेलोसिटी जो होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई वी। यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 9 into 10 raised to power minus 4, and velocity is a c by 100, so it is 3 into 10 raised to power 8 divided by 100, so it is 27 into 10 raised to power 2. That is a, that will be the electric field. Electric field क्या होगा, 27 into 10 raised to power 2, but condition क्या, electric field mutually perpendicular, so it is a fourth one is a correct. नेक्स्ट में देखें, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम जिसमें एक्स की तरफ बढ़ने पर हाइट बढ़ रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहाँ जब स्मॉल सेगमेंट लेता हूँ डी एक्स, तो इस पर टेंजेंशियली जो फोर्स लग रहा है, इस जगह एंगल थीटा है तो इससे ऊपर की तरफ एंगल, इस जगह थीटा प्लस डी थीटा होगा, इस जगह थीटा हो जाएगा। टेंजेंशियली जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, दैट इज एस इंटू जेड, दैट इज एस इंटू जेड। इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट इज एस साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, that is multiplied by z. Z is the length along the z axis, that is equal to the total weight. Weight is a mg, mg is a, the total mg is a y, m is a y into dx into z into rho, so it is y z rho dx into g. Now theta is very small, therefore sin theta equal to theta, therefore the s multiply by d theta, z से z cancel कर ले, it is a y rho dx g, dx को इस साइड ले आए तो it is a d theta by dx, d theta by dx is equal to y rho g divided by surface tension, and we know tan theta is equal to dy by dx, differentiate, then sec square theta d theta by dx is equal to d2y by dx2. According this, sec theta tends to 1, it is very small, and d theta by dx equal to dy by dx2, and dy by dx2 is a y rho g by x, rho g by s, so y rho g by s, it is the fourth one is correct. नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग, दो सेपरेटली गैस चैम्बर को पार्टीशन से सेपरेट किया है जिनके इंडिविजुअल प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। इट मीन्स इन दोनों चैम्बर को यदि पार्टीशन को रिमूव कर दिया जाए और इनको रिमूव करने के बाद इनकी टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगी। सो फर्स्ट का इंटरनल एनर्जी, सेकंड का इंटरनल एनर्जी का सम पूरी गैस के मिक्सचर का फाइनल एनर्जी के इक्वल होगा। एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू, सपोज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एफ, देन एफ बाई 2 nRT, and this nRT is in term of pressure and volume. You know nRT equal to PV. So initial first one, that is a F by 2 P1 V1 plus second का P2 V2, mixture का P final, and mixture का total volume is the sum of the P1 and V1 and V2, so it is V1 plus V2. Then first one, pressure of the first gas is a 1, volume of the one V1, it is a 2 plus P2 is a, that is a 2, and volume of the second is a 3 liter. Then P final calculate करना है, volumes of the 1 and 2, total volume is a 5,
and P final is equal to this 6 plus 2 8 by 5, and I think it is 1.6 ATM. So the correct one is the fourth one. एक सिलेंडर है जिसके अंदर कोई गैस भरी है, गैस भी ऑक्सीजन है जिसके नंबर ऑफ मोल इनिशियली दे रखे हैं. आफ्टर सम गैस विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गेज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11. इट मीन्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल इज गिवन, इट इज़ 18.2. फाइनल नंबर ऑफ मोल्स देखें तो इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स आर P फाइनल, V final, R into T. T is the temperature, temperature is a 300 Kelvin. R given, R is 100 by 12, and initial pressure to final pressure is given, it is 11 ATM, but it is a gauge pressure, so it is a 12 into 10 raised to power 5. Volume is a 30 in the liter, it means it is 10 raised to power minus 3. Final number of moles are, कैलकुलेट करने पर इसको इट इज़ अ 12 या 144, मीन्स इट इज़ अ 14.4. सो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू द, जो गैस निकली है उस गैस का नंबर ऑफ मोल N1 माइनस N2. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज़ अ 18.2 माइनस 14.4. It is 8 and 3.8, almost 3.8 मोल. बट यहाँ मास पूछा है, तो मास के लिए हम बात करें तो मास ऑफ द गैस विच इज विड्रॉन, सो इट इज अ 32 मॉलिकुलर वेट इनटू 3.8 in a gram, and it is a 120 ग्राम. और 120 के करीब करीब, थोड़ा सा राउंड ऑफ करें इसको, तो इट इज़ अ आई थिंक 116 ग्राम. So first one is correct. The next problem, a wire of resistance R is given and R cut into 8 equal parts, means the individual wire का एक का resistance जो होगा that is a R by 8, because 8 equal part में divide किया है तो total 8 pieces हो गए. इनमें से from these pieces 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together parallel, means इस टाइप के 4 को पैरेलल में कनेक्ट किया है. सो 4 को पैरेलल में कनेक्ट किया R by 8 को, तो R by 8 4 को पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब हर एक का जो रेजिस्टेंस आएगा R by 8 वाले पैरेलल में होंगे, सो इट इज़ R by 32 एंड इट इज़ R by 32. नाउ दीज टू सेट्स आर एडेड इन सीरीज. अब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर इन दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का सम हो जाएगा, एंड दैट विल बी द R by 16. So R by 16 is the equivalent resistance. It is first one is correct. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कि कुछ डिस्टेंस तक, कुछ थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, फिर कुछ अलग है, बचे हुए में एयर है. तो यूँ मान लो कि टोटल 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है. इनका इक्वलेंट कैपेसिटी 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 को सम करें तो इन्वर्स ऑफ द 1C आ जाएगा, यानी 1/C की वैल्यू आ जाएगी. और ये बोल रहा है कि 1/C यानी C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो कि डबल हो रहा है. फर्स्ट वाले केस में यदि 3D/8 डिस्टेंस लेते हैं तो इसमें डाइलेक्ट्रिक K1 है, सेकेंड में K2 है. सो K2 इज़ अ 4K1/5 and the thickness is a D/2 and remaining thickness D/8 है जिसमें कि एयर है. सो इन तीनों को यदि इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस ऐड करूँ तो इट इज़ 3D/8 प्लस D/2 प्लस D/8. इसमें एप्सिलॉन नॉट ए होगा, इसमें 4K1/5 होगा,
इसमें K1 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A1 एप्सिलॉन नॉट A सभी में है, कॉमन है, हटा दें, D का हटा दें. सो फर्स्ट टर्म इज़ a 1/2, second is a 3/8 K1, next one is a 5/8 K1 and plus 1/8. So it is a 1/2 minus 1/8 is equal to 3 plus 5, 8/8, and it is a 1/K1. So it is a 8. 4 minus 3/8 equal to 1/K1. So the K1 is equal to 8 divided by 3. It is a 2.66. So I think third option is correct. नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग कॉयल का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉयल का एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, इफेक्टिव एरिया जो भी बोले, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न वैसे भी एन दोनों में 1 है, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है डिफरेंट, एंड द कॉइल का रेडियई रेशियो 1:2 है, तो सिंपली मैं कह दूँ M1 to M2, करंट सेम, नंबर ऑफ टर्न सेम, सो इट इज़ अ प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर. सो इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो, रेडियई का रेशियो 1:2 का स्क्वायर 1:4, सो 1:4 मीन्स इट इज़ द थर्ड वन इज़ करेक्ट. कि सपोज टोटल मास m है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2r, इसमें से r का पार्ट रिमूव किया, रेडियस का सॉलिड स्फीयर रिमूव किया, जिसका मास जस्ट m/8 हो जाएगा. अब रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल स्फीयर टू रेस्ट ऑफ पार्ट. स्मॉल स्फीयर का y एक्सिस के अबाउट, सो स्मॉल स्फीयर का y एक्सिस के अबाउट इट इज 2/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस मास इंटू आर स्क्वायर, दैट इज स्मॉलर, एंड रिमेनिंग पार्ट का जो आएगा मास इज m/8, रेडियस इज r, m/8 रेडियस इज r, बट द रिमेनिंग पार्ट का हम बात करें तो इट इज अ टोटल 2/5 m इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस दिस टर्म, सेम टर्म बिकॉज इट इज अ रिमूव्ड पार्ट, so this one is a 2/5 into m/8 r square minus m/8 r square, then it is a ratio. रिमूव्ड पार्ट का टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रेस्ट वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. ये रिमूव्ड पार्ट का निकाला, ये टोटल में से रिमूव्ड का सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसी का रेशियो पूछा है. सो आई थिंक फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इट इज़ अ 40 एलसीएम बिकॉज 2/40 plus 1/8 and it is divided by 8/5 minus 2/40 minus 1/8. Suppose 40 को कैंसिल करते हैं, then the ratio is a 5 plus 2 7, 7/40, and that 40 LCM इधर ले ले तो it is a 64 minus 2, 64 minus 2 minus 5. So I think it is 7 divided by 7 subtract करेंगे, it is a 57, 7/57, 7/57. It is the first option is correct. In the next question, sun rotates about at center, rotates about its center, and the time period is given. Time period is at 27 days. Suddenly its a radius expand होकर r से 2r हो रहा है, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? तो इसके लिए हम ये बात करें कि एंगुलर मोमेंटम is conserved, so I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. तो सन को सॉलिड स्पीड लेता हूँ तो इट इज़ 2/5, मास सेम है, रेडियस r है, एंड द टाइम पीरियड 2π/t1. इनिशियल टाइम पीरियड इज 27 days. मास सेम है बट रेडियस बिकम्स 2 times, then it is a 2π/. Final time period is a t2, then it is a 4. 27 into 4 is equal to t2. Therefore the new time period is a 4 times, so it is 108 days.
I think it is the second option is the correct. Question from vertical circular motion. इस vertical circular motion में lower point पर velocity given है, that is v naught. Horizontal से theta angle पर point पर velocity v given है. इस जगह स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है या यूँ कह दें कि टेंशन बिकम ज़ीरो. दिस पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो हो रहा है. पूछा क्या, द रेशियो ऑफ द वी टू वी नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों का हाइट का डिफरेंस, वर्टिकल हाइट का डिफरेंस एल और दिस वन इज एल साइन थीटा. सो व्हाट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर minus twice of g L1 plus L sin theta. So L1 plus sin theta. That is the first equation. And according second condition, the tension at this point is equal to 0. And we know the component of this one, mg sin theta. And mg sin theta is equal to m speed. Speed is a v. Speed का square by L. So velocity at this point is a v square equal to gl sin of theta. That is second condition, because the tension becomes 0 at the given point. Now we want to find the v to v naught. So the ratio of the v naught square minus v square is equal to twice of gl 1 plus sin theta, and that is divided by v square. In this side is a gl sin theta, then v naught square by v square minus 1 इस साइड ले जाऊंगा, प्लस 1 हो जाएगा, दिस कैंसिल. सो इट इज अ 2 plus 2 sin theta डिवाइड बाय sin theta. Therefore v naught by v is equal to square root of 2 plus 3 sin theta divided by sin theta. But we want to find the inverse of this one, because we want to find v by v naught. So v by v naught is a inverse कर लें, sin theta divided by 2 plus 3 sin theta. So sin theta upon 2 plus 3 sin theta. Second option is correct. डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या प्रॉब्लम, जिसमें लैम्डा फोटोन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी इज ई. देयरफॉर द लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. पी इज अ फोटोन का मोमेंटम इज अ ई बाई सी. इट इज ई बाई सी. सिमिलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इट इज एच अपॉन मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस मास इनटू एनर्जी ई. So the ratio of the lambda photon to lambda electron is equal to hc by e, that is multiplied by h upon root of 2m e. cancel कर दें, so it is a c in the bracket, it is 2m divided by e. It is the ratio of the lambda photon to lambda electron. So correct one is the first one. इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रॉब्लम, इसके अकॉर्डिंग सेल का ईएमएफ 50 वोल्ट है, 1 और 3 पैरेलल में. सो इट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज अ 3/4 एंड 4 and 2 आर इन द पैरेलल. सो इट इज़ 4/3. दोनों को ऐड करें तो टोटल इट इज़ अ 25/12 इज इक्वलेंट रेजिस्टेंस. इक्वलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट की बात करें तो इट इज़ अ 50/25/12. So the current through the cell is a 24 एम्पियर. इसका लिए यहाँ से 24 एम्पियर करंट जा रहा है. आगे 1:3 तो 3:1 के रेशियो में करंट डिवाइड होगा. इसका 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगा तो 3 पार्ट इधर जाएगा, इधर 18 जाएगा, इधर 6 जाएगा. टोटल 18 plus 6 is a 24. रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इज 1:3. सो द करंट रेशियो इज a
3:1। सिमिलर यहाँ देखें तो यहाँ का रेशियो 1:2 है, बट करंट का रेशियो 2:1 होगा। 2:1 2:1 के अकॉर्डिंग 24 को डिवाइड करें, सो इधर 16 हो जाएगा, इधर 8 एम्पियर हो जाएगा। 16 + 8 दोबारा रिटर्न 24 आएगा। इट मीन्स 18 एम्पियर इस साइड से आके इधर 16 जा रहा, तो इस ब्रांच CD में करंट जो है 2 एम्पियर नीचे की तरफ जाएगा। 6 और 2 मिलकर यहाँ पर 8 हो जाएगा। सो द इन द ब्रांच C to D द करंट इज़ अ 2 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ द फोर्थ वन। नेक्स्ट EM वेव से लिया है। EM वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x एक्सिस के अलॉन्ग है एंड वाइब्रेशन z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसका हम श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है y डायरेक्शन में ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में तो दो पॉसिबिलिटी है। सेकंड, इसके बाद हमें पता है कि E0 बाय B0 का वैल्यू c यानी 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा। देन B0 इज इक्वल टू E0 इज अ 60 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸, या यूँ कह दें 2 × 10⁻⁻7 होगा। सो B0 का वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 ओनली इन द थर्ड ऑप्शन, सो सेकेंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका वॉल्यूम 30 लीटर है, नंबर ऑफ मोल गिवन है 18.2। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर से बाहर निकलने के बाद गैस प्रेशर 11 atm, टेम्परेचर इज गिवन। इट मीन्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल इज 18.2। फाइनल नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए प्रेशर जो है 11 atm का मीनिंग इट इज़ अ 12 into 1.01 into 10⁵ is a pressure. The pressure is a 12 into 1.01 into 10⁵, and volume is a 30 into 10⁻³ 13 liters are. That is PV divided by R into T. R is 100 now multiply by 12, and temperature 27 Kelvin में convert करेंगे तो it is 300. So it is a number of mole, final number of mole is equal to, N2 को कैलकुलेट करेंगे it is a 1454. So delta N number of mole जो कि निकल चुके हैं, that is equal to N1 minus N2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18.2 minus 14.54, it is a 3.76, एंड इसका मास निकालें गैस का, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल 3.76 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ अ 32, सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, सो ये लगभग 117 के करीब आ रहा है इन अ ग्राम। सो आई थिंक इट इज़ अ 0.116 किलोग्राम। फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ y एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉट किया है। वी नो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट with first one intensity of light, second intensity of light, frequency of light, and this one is also frequency of light. Then we know in electric current जो गिवन होती है वो फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी नहीं करता, बट इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इनकरेक्ट, एंड थर्ड वन आल्सो फ्रीक्वेंसी के साथ करंट नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो द ओनली ए, सो थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन फ्रॉम एरर, द रिलेशन इज अ P is equal to A cube B square divided by C root of D. Then we know percentage error in the P is equal to percentage error in the A of 3 times plus 2 times of the percentage error in the B plus 1 times of the percentage error in the C
plus half time of the percentage error in the D. Therefore, the percentage error in the P is equal to 3 into A का percentage error 1, so it is 3 plus 2 times of the percentage error of the B, 2 into 3 6, plus percentage error of the C plus 4 into 1 by 2, it is a 2. Therefore, it is a 13%. So first option is correct. Gases A and B जिनका प्रेशर सेम है एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है कांस्टेंट प्रेशर पर, इंटरनल एनर्जी भी सेम है, तो इट मीनिंग अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डी यू. हीट सेम है, इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम है, हीट गिवन सेम है, तो इट मीन्स वर्क डन भी सेम होगा. वर्क डन ऑन द ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बी. प्रेशर भी सेम है, सो इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इन ए इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इन द बी. फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट यदि डी ए हो रहा है, सो इट इज़ अ पाई आर ए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन वॉल्यूम. सेकेंड में एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड पिस्टन. फर्स्ट और सेकेंड पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सो द रेशियो ऑफ ए टू बी, रेडियस ऑफ ए टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. सो फाइंड क्या करना सब, रेडियस ऑफ ए टू रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ displacement of B is a 9 by 16, so it is a 3 by 4. So correct is a fourth one. नेक्स्ट में SHM से लिया गया, इसमें 2 पॉइंट मासेज है, दोनों आइडेंटिकल है. सस्पेंडेड फ्रॉम ए सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है. वर्टिकली ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो इनका मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू ए ओमेगा. ये भी सेम है, सो इट मीन्स A, amplitude of the P and amplitude of the Q, omega of the P and omega of the Q, दोनों का मैक्सिमम स्पीड सेम है. यहाँ हम बात करें तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट K by M. एम्पलीट्यूड ऑफ द P एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द P में K is a K1 and the mass is same. Similar, amplitude of the Q, root of K of the second spring, mass same है. Then ratio पूछा है AQ to AP and that is equal to root of K1 divided by K2. Root K1 by K2 means it is a second option is correct.